Hello everyone, welcome back to my channel. Last time we have studied general characteristics of Bryophyta. Today we will do the life cycle of Bryophyta. Okay, let's do this. As the topic is life cycle of Bryophyta. So in last lecture we have studied that the main plant body of Bryophyta was, ये आपको पता होगा, that gametophyte. The main plant body was gametophyte. Entire gametophyte was haploid. Okay, so see this. This is the leafy gametophyte of Bryophyta. Here, one shoot is the male shoot, and second shoot is the female shoot. And the apex of this shoot, the male sex organ is present, and the apex of the female shoot, these are the spirally arranged leaf present on the stem axis, and the apex of the leaf sex organs are present. So this is the male shoot and this is the female shoot, and here they have stem like structure. They have what? Stem like structure. They have what? Leaf like structure, and here they have root like structure, which is also what? This can be what? Branched also. They can be unicellular and they can be multicellular also. So this is called the root like structure. Root like structure called rhizoids. Okay, rhizoids. Now gametophyte having first part called male receptacle. Gametophyte have what? Male receptacle. Suppose this one is the male receptacle and this one is what? Female receptacle. Okay, say this male receptacle, or it is also called male reproductive system. Male reproductive system. Okay, second thing, it also have what? Female receptacle. They have what? Female receptacles, which is also called female reproductive female reproductive system. Okay, male reproductive system or male sex organ, it is also called male sex organ. And the male sex organ of this liverworts and mosses, that is what your Bryophyta, the male sex organ is called what? Antheridium. This is called the antheridium. This is also a single end structure, and here female sex organ, and that is what your archegonium. So archegonium is the structure of what? Female reproductive system, and the antheridium is the sex structure of what? Male reproductive system. So see this. This is the structure. The globular part is what your male reproductive system or male sex organ, which is attached to male receptacle. Inside this, they have what? They have mother cells. Okay, last class we have studied that the sex organs are multicellular and they are jacketed, and these jackets are what? Sterile.
द मेल सेक्स ऑर्गन ऑल्सो बेयर्स व्हाट, जैकेट्स। तो मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर भी क्या है, जैकेट है, और इन सब के अंदर क्या है, आपके पास सेल्स हैं, एंड दे आर मदर सेल्स, जो क्या बनाएंगे आगे चल के, मेल गैमेट बनाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा एंथ्रेडियम से एक दिन क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद यहाँ से बाइफ्लैजेलेटेड, यहाँ से बाइफ्लैजेलेटेड क्या निकलेंगे, and all they are what, haploid. This antheridium was also haploid, and the by mitosis antheridium से जो mitosis हुआ उसके बाद जो बना है, that is called what, antherozoids. This is called what, antherozoids, and these antherozoids are also what, biflagellated. This is the characteristic feature. अगर आप बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, in case of टेरिडोफाइटा they have multiflagellated male gametes. Okay, so this is the antherozoid, the male gamete which is biflagellated, and here we have flask like structure. See this, we have what, flask like structure like this. This is the flask like structure of what, female archegonia. This is the female archegonia, flask like structure with lid. This is what, the lid. This part is called what, the lid. This part is called the neck, and this part is called the venter. This part is called venter, neck, and lid. And they have also what, the stalk, which is attached to female receptacle. This part is called what, the stalk, and this is what, the jacket, jacket which is what, sterile. ओके, तो मैंने पहले ही कहा हुआ है, इनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे, सेक्स ऑर्गन जो होंगे बेटा, दैट विल बी मल्टी सेलुलर. The sex organ will be what, multicellular, keep in mind. Okay, now in female they have the lid, they have what, the neck, and they have the venter. Here they have cells like this. Inside this they have neck canal cells. Inside this they have what, several neck canal cells, and in venter they have venter canal cells, and inside the venter the larger part is occupied by single egg. This is what, your egg, and this is the neck canal cells. This is neck canal cells, and this is what, your venter canal cells. This egg is a haploid one. अब हमारे पास क्या है, एंथ्रोजॉइड मेल से रेडी है आफ्टर माइटोसिस, उसके बाद वी हैव आर्किगोनिया, एंड मजे की बात यह है बेटा कि आर्किगोनिया इज आल्सो सराउंडेड बाय व्हाट, जैकेटेड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज आल्सो व्हाट, स्टेराइल. तो दे हैव मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर and they are what, jacketed. तो female archegonia is also surrounded by jacketed cells, and we have the very important part जो आपको दिख रहा है, this is the egg. इसी की जरूरत थी हमको. ओके, दिस इज द एग एंड दिस आर द एंथ्रोजॉइड. एंड हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा कि हमें क्या चाहिए था, वी रिक्वायर्ड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम द एंथ्रोजॉइड they will move towards the mouth of what, archegonia. They will enter into what, archegonia. So they required what, here क्या चाहिए होगा इनको, वाटर चाहिए होगा, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, एनी ब्रायोफाइटा. सो दे रिक्वायर्ड वाटर, इनको क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, वाटर किसके लिए इंपॉर्टेंट था, फर्टिलाइजेशन के लिए. ओके, दिस पार्ट इज दिस. तो ये वाटर से क्या होंगे, एंथ्रोजॉइड विल ट्रैवल टुवर्ड्स व्हाट, द फीमेल, एंड यहाँ पे क्या करेगा, इट विल फर्टिलाइज व्हाट, एग. तो जब एंथ्रोजॉइड्स, बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एंथ्रोजॉइड जब किसके पास पहुंचेगा, ये पहुंचेगा किसके पास, आर्किगोनिया के पास, और आर्किगोनिया में किसके पास पहुंचेगा, एग के पास. तो यहाँ जो प्रोसेस होगी, दैट प्रोसेस इट कॉल्ड सिंगैमी. यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन,
क्योंकि हमें पता है एंथ्रोजोइड भी हमारा कैसा था, हैप्लॉइड था, और एग भी हमारी कैसी है, हैप्लॉइड है। तो दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, fertilization. And this kind of fertilization where male is moving, where male is what, moving, and female is what, static. This kind of fertilization is called what, zoodiogamy. इसको zoodiogamy भी कहते हैं. This is called what, the oogamy. This is also called what, the oogamy. Okay, now we have, after fertilization with anthrozoid and the egg, we found a first structure of sporophyte, and that is what, your diploid structure. And this diploid structure is called what, zygote. तो बच्चों ये जो zygote बना है, this is the starting, this is the starting phase of स्पोरोफाइट. तुमसे कोई पूछे कि स्पोरोफाइट कहाँ से स्टार्ट होगा इसका, तो बच्चों याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होगा, दैट विल स्टार्ट विथ व्हाट, जाइगोट, द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज डिप्लॉयड. This is the zygote, and zygote do not undergo reduction division immediately. It is mentioned in textbooks कि ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रहेगा zygote, and zygote developed under what, archegonia. यहाँ पे जो egg है, that is it's transformed into what, zygote after fertilization with the anthrozoid. Okay, so here we have the multicellular structure present inside the archegonia, that is the ventral side. ओके, दिस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर मींस ये किसमें गया है, ये गया है माइटोसिस. तो कहीं ना कहीं जाइगोट ने क्या किया, माइटोसिस किया, उसके बाद उसने क्या बनाया है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेल्युलर व्हाट, स्ट्रक्चर. एंड दिस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, द फर्स्ट टाइम embryo. This is called the embryo. That's why bryophyta were called the first embryophyta, because first time embryo is formed here. Now, this embryo is present inside the archegonia. Let's draw the diagram. We have the stem-like structure again. We have the root-like structure, rhizoids, which is multicellular, and we have the male receptacle and we have the female receptacle. In the male receptacle, we have what? Male receptacle, we have leaf-like structure, spirally arranged, and the female structure, we are also having what? Spirally arranged leaf. This one structure, this is the male receptacle, this is the female receptacle. So inside the female receptacle we have the archegonia. If I make here the archegonia part, see this was your archegonia, and inside the archegonia we have multicellular, है ना, multicellular कौन सा structure है बेटा यहाँ पे, this is nothing but your embryo. This multicellular structure is what, your embryo inside the archegonia. And this is zygote. Zygote developed into embryo. Embryo is present in what, female receptacles. And now this embryo start dividing. Okay, after dividing, they will develop into like this structure, and the terminal part is look like this. So this part is called what, the all the structure under this is developed into this green ball part. So this is called foot, this is called the seta, and this part is called the capsule. Okay, this capsule is also diploid, seta is also diploid, and foot is also what, diploid. तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर कैसा था, इट वाज हैप्लॉइड, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, डिप्लॉइड. ओके, बिकॉज डिप्लॉयड क्यों, क्योंकि जाइगोट मल्टीसेलुलर क्या बनाया उसने, एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो किस में डेवलप हो गया, फूड, सीटा और कैप्सूल में. ओके, तो दिस इज द स्पोरोफाइट, दिस इज द स्पोरोफाइट पार्ट. एंड मैंने कहा था इट इज डिपेंडेंट, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, गेमेटोफाइट फॉर देयर nutrition also, and this gametophyte is independent. So this one is called the gametophyte. This is the gametophyte. Did you got me or not? So this one is what your entire bryophyta का पार्ट, जहाँ पे आपके नीचे पार्ट कौन सा दिख रहा है, गेमेटोफाइट, ऊपर कौन सा पार्ट दिख रहा है, स्पोरोफाइट. ओके बेटा, अब इनसाइड द कैप्सूल, inside the capsule, let's see the structure of capsule beta. See this is the structure of capsule, this is the structure of capsule. If we look this is the structure of what, this is the structure, this is the structure
of capsule. Inside the capsule, we have the ridge like this. This ridge is called columella. This is called the columella. Inside this columella, we have like a teeth-like structure here, which is of 16 pair. These are what? 16 pair of teeth, like this. 16 pair of teeth are present at the terminal. This is called the peristomial. This is called the peristomial teeth. This is called the peristomial teeth. And inside the columella, like this is the structure where spore mother cells are present. Here we have what? Spore mother cells. And these all structures are what? Diploid. All the structure under this are what? Diploid. So see this. If I had made this now, this is the one. This is called the spore. This is called the spore mother cell. This is the spore mother cell, which is also what? Diploid. ओके, तो पेरिस्टोमियल टिथ क्या करेगा? फटेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, देयर आर सम सेल प्रेजेंट कॉल्ड एन्युलस. दिस सेल्स आर कॉल्ड एन्युलस. तो आपके पेरिस्टोमियल टिथ में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? एन्युलस सेल्स. जैसे ही क्या करेंगे, ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा? दे विल स्वेल. और जैसे वो स्वेल होंगे तो दैट लिड विल ओपन. एंड लिड जैसे ओपन हो जाएगी तो ये स्पोर मदर सेल जो कि जा चुके हैं किसमें? दे विल अंडरगो व्हाट? मियोसिस. दे विल अंडरगो व्हाट? मियोसिस. एंड मियोसिस होने के बाद बच्चों स्पोर मदर सेल ने क्या बनाए हैं? दे हैव मेड व्हाट? डिफरेंट स्पोर्स. इन्होंने क्या बनाया बेटा? यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं स्पोर्स. एंड दिस स्पोर्स आर व्हाट? हैप्लॉइड. तो बच्चों तुमसे कोई पूछे कि पहली गैमेटोफाइट लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो स्पोर से स्टार्ट हुई है. ओके जब क्या होता है कैप्सूल में क्या होगा? मियोसिस होगा. इन कैप्सूल में जब क्या होगा? मियोसिस होगा, तो इसमें से क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे. तो आपके स्पोर बनने के बाद क्या करेगा? अब यहाँ पे एक चीज डिफरेंशिएट हो जाता है लीवरवर्ट्स और मॉसेस में. कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं मैं, कि अगर ये स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाता है किसमें? गेमेटोफाइट में. अगर ये स्पोर क्या करता है? डायरेक्टली जर्मिनेट में, यहाँ लिख भी देता हूं. अगर ये क्या करता है? डायरेक्टली जर्मिनेट करता है. कौन? स्पोर. अगर स्पोर क्या करे? डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाए किसमें? एक गेमेटोफाइट में. ये पक्का किसका कैरेक्टर है? लीवर वर्ड्स का. लीवर वर्ड्स का कैरेक्टर है कि लीवर वर्ड्स में जब स्पोर बनते हैं आपके कैप्सूल्स में, कैप्सूल में से बनने वाले स्पोर डायरेक्टली क्या बना देंगे? दे विल मेक व्हाट? गेमेटोफाइट. ओके द नेक्स्ट पार्ट, अब बात करते हैं थोड़ा सा मॉसेस के बारे में. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाता है मॉसेस में. मॉसेस में क्या होता है बेटा? जो स्पोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डेवलप इनटू लाइक दिस स्ट्रक्चर. This structure, and they have what? Some kind of buds also. See, this part is called the primary. This is called the primary protonema. याद रखिएगा प्रोटोनिमा सिर्फ किसमें बनता है? मॉसस में. दिस इज द 1 डिग्री प्रोटोनिमा, है ना. और बच्चों फिर क्या होगा? इसमें से क्या होगा? ये जो बड दिख रहे हैं आपको, दिस बड विल मेक डिफरेंट व्हाट? डिफरेंट सेकेंडरी प्रोटोनिमा. प्रोटोनिमा. और प्रोटोनिमा बनने के बाद फाइनली क्या होगा? एक लीफी क्या बनेगी? यहाँ पे लीफी क्या बनेगी? स्टेज बनेगी. एंड दैट लीफी स्टेज लुक लाइक दिस. समझ नहीं आ रहा है? यहाँ पे कैसा हुआ है आप ये समझो. यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया मैंने. मैंने कहा ये गेमेटोफाइट लाइफ है. इस गेमेटोफाइट में एक दिन क्या बना? यहाँ पे एंथ्रेडियम बना. यहाँ पे क्या बना? आर्किगोनिया बना. सी दिस, एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनिया बना. एंथ्रेडियम में क्या है हमारे पास? माइटोसिस होके क्या बने? यहाँ पे बाइफ्लैजेलेटेड क्या बने हैं? एंथ्रोजॉइड. और यहाँ पे आर्किगोनिया से हमें क्या मिला है? एग. ये एंथ्रोजॉइड मूव करेगा पानी के थ्रू किसमें? एग की तरफ. और एग से क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज करने के बाद बनाएगा जाइगोट. इट्स वेरी सिंपल. जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? जाइगोट डू नॉट अंडरगो व्हाट? मियोसिस इमीडिएटली. वो पहले क्या बनाएगा? इट विल मेक द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द एम्ब्रियो, है ना. अब जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो क्या करेगा? दिस विल डेवलप इनटू व्हाट? दिस ग्रीन पार्ट, फूड सीटा एंड कैप्सूल. इट वाज अर्लियर. And this food seta capsule which is a sporophyte, because it is also embryo is also what here? Embryo is also what? Diploid.
बिकॉज वो जाइगोट से माइटोसिस करके बना हुआ है. तो दिस एम्ब्रियो इज ऑल्सो व्हाट डिप्लॉयड. दिस विल form what food, seta and capsule. Capsules look like this. Here capsule having what peristomial teeth, and this teeth opens, and finally the dispersal occurs in capsule, and finally spores are produced, and these spores are haploid. From here gametophytic life starts. This spore, if directly germinate, it will be what liverworts. If it germinate indirectly, तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे इनडायरेक्टली, अगर क्या हो रहा है स्पोर जर्मिनेशन, इनडायरेक्टली अगर क्या कर रहा है स्पोर क्या कर रहा है जर्मिनेट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं मॉसेस. तो याद रखिएगा सेकंड वाला जो चल रहा है इसमें ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट मॉसेस. तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर बेटा स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट कर रहा है तो लीवर बर्ड्स बन जाएंगे. अगर स्पोर क्या कर रहा है इन केस ऑफ मॉसिस, अगर स्पोर क्या कर रहा है इनडायरेक्टली जर्मिनेट कर रहा है, पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाएगा. कीप इन माइंड प्राइमरी प्रोटोनिमा इट्स अ ग्रीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी प्रोटोनिमा इट्स अ ग्रीन मल्टीसेलुलर फिलामेंटस. कैसा बेटा ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एंड क्रीपी. कैसा स्ट्रक्चर है ये क्रीपी स्ट्रक्चर है. समझ में आया. तो अब क्या होगा देखो सामने सिंपल से समझो. स्पोर आया हमारे पास, स्पोर से क्या हुआ है प्राइमरी प्रोटोनिमा बना. प्राइमरी प्रोटोनिमा में जो बड बने हैं उनसे क्या बने हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा. सेकेंडरी प्रोटोनिमा से क्या बना है लीफी स्टेज, और लीफी स्टेज से अगेन क्या बन गया हमारा कंप्लीट गेमेटोफाइट. तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ है. अगर आप देखना चाहोगे तो अगेन देखो हमारे पास क्या है गेमेटोफाइट है, उसमें से एक है हमारा मेल और एक है हमारा फीमेल. मेल को हमने क्या बोल के रखा है, मेल को हमने बोल के रखा है एंथ्रीडियम, एंड फीमेल को हमने बोल के रखा है आर्किगोनियम. अब ध्यान सुनिएगा एंथ्रीडियम से हमारे क्या बना है एंथ्रोजोइड, एंड आर्किगोनिया से हमारे पास क्या बना है एग. तो इस एंथ्रोजोइड का किससे मिलना होगा एग से मिलना होगा. इस मिलने के लिए हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे रहेगा पानी, एंड पानी के लिए हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे, तो इसीलिए दे आर प्रेजेंट नियर बाई वाटर, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद बच्चों यहाँ देना जाइगोट बना, इस जाइगोट क्या करेगा इट विल डिवाइड माइटोटिकली. यहाँ पे अभी क्या नहीं होगा इसका मियोसिस नहीं होगा. मियोसिस होने से पहले दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू व्हाट फूड सीड एंड कैप्सूल which is a diploid structure. तो दिस स्पोरोफाइट मतलब गेमेटोफाइट ने एक दिन क्या बना दिया है स्पोरोफाइट बना दिया है. अब ये स्पोरोफाइट में मेन क्या है कैप्सूल है. इस कैप्सूल में क्या होगा बेटा मियोसिस किसके साथ में स्पोर मदर सेल के साथ में, एंड फाइनली क्या होगा दिस स्पोर विल डेवलप, एंड जो स्पोर डेवलप हुए हैं दे विल अगर ये स्पोर डायरेक्टली जनरेट कर गया तो लीवर बोट्स, और इनडायरेक्टली प्राइमरी प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा लीफी स्टेज बना के अगर क्या हुआ है गेमेटोफाइट बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे आपका मोसिस. ओके. तो दिस वाज योर द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट ब्रायोफाइटा. इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा कि एक हैप्लॉइड ने हमें क्या दिया है डिप्लॉइड दिया है, एंड डिप्लॉइड ने हमें क्या दिया है हैप्लॉइड दिया है. इसी को हम बोलते हैं हैप्लो, ये हैप्लॉइड था. दिस इज व्हाट योर डिप्लॉइड. ओके. और हमारे पास डिप्लॉइड क्या है स्पोरोफाइट है. तो स्पोरोफाइट हमारा स्टार्ट हुआ था किससे जाइगोट से. स्पोरोफाइट हमारा स्टार्ट हुआ था जाइगोट से, और हमारा हैप्लॉइड गेमेटोफाइट ये कनेक्टिंग लिंक है बच्चों याद रखिएगा. गेमेटोफाइट हमारा स्टार्ट हुआ था आपके स्पोर्स से. दिस स्पोर्स आर नथिंग बट योर एन, एंड जाइगोट इज व्हाट योर 2n. तो स्पोर ने क्या बनाया स्पोर ने एक दिन गेमेटोफाइट बनाया, गेमेटोफाइट ने एक दिन क्या बनाया स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट ने अगेन क्या बनाया जाइगोट बनाया, जाइगोट से ऐसा करते करते क्या हुआ हैप्लॉइड गिव राइज टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड गिव राइज टू व्हाट हैप्लॉइड. दिस इज द कंप्लीट व्हाट द लाइफ साइकिल ऑफ योर ब्रायोफाइटा. Okay, that's why it is also called last thing. Last is what they are having haplodiplontic what life cycle. Clear. So we have started from here to here to here, and then when zygote, zygote to embryo, embryo to sporophyte, sporophyte से हमारे कैप्सूल में meiosis, meiosis से spore, spore से again gametophyte. Okay, thank you, have a nice day.